نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وجاہت کس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی، وجاہت کس قدر ہے مرحبا ختم نبوت کی، زمین و آسماں میں ہے ضیا ختم نبوت کی۔ خدا نے روز اول ہی رسولوں سے لیا وعدہ، تمہاری روح میں ہوگی وفا ختم نبوت کی۔ کوئی دجال کیا اس نقش فطرت کو مٹا پائے، کوئی دجال کیا اس نقش فطرت کو مٹا پائے، ہمیں ہر روز ملتی ہے عطا ختم نبوت کی۔ محمد فاتح ہر جاں، محمد خاتم دوراں، محمد فاتح ہر جاں، محمد خاتم دوراں، محمد کو ملی شان اعلی ختم نبوت کی۔ غلام زار کے لب پر بحمد اللہ جاری ہے بیاں ختم نبوت کا، ثنا ختم نبوت کی۔ تمام سامعین اکرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاجز بندہ ناچیز محمد احمد رضا ناظم نشر و شاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ یہ پلیٹ فارم ضیاء رسول امینی بھائی کا ہے، ان کے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، آج ان کا آپریٹ ہے، وہاں پہ وہ مصروف ہیں، اور انہوں نے اپنا مورچہ عاجز کے ذمہ کیا جو کہ عاجز سے لے کے چلے گا۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے مجاہد ختم نبوت بیت اللہ لطیف بھائی، جو اس مقام صحابہ اور حقیقت قادیانیت اس موضوع پر لیکچر ڈلیور کریں گے۔ تمام صاحبان سے درخواست ہے کہ غور سے اس لیکچر کو بھی سننا ہے، لنک کو وائرل کر دیں، شیئر کر لیں، اور خصوصی طور پر ضیاء بھائی کے والد صاحب کے لیے دعا کیجیے گا۔ ان کا جو آپریشن ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بیت اللہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان اب ٹھیک ہے، آواز کلیئر؟ اللہ کا شکر، سب خیریت۔ بیت اللہ بھائی مجھے آپ کی آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے، آڈینس میں سے کوئی کمنٹ کر کے بتا دے کیا بیت اللہ بھائی کی آواز بالکل کلیئر ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے، تاکہ پروگرام شروع کیا جائے۔ آصف صاحب ہیں، عمران صاحب ہیں، اور دیگر ساتھی کوئی کمنٹ کر کے بتا دیں عبید اللہ لطیف بھائی جب بول رہے تھے ان کی آواز کلیئر تھی یا سلو تھی؟ اگر کلیئر تھی تو پروگرام کو شروع کیا جائے۔ مدم ہے عبید اللہ بھائی، آپ کی آواز سلو ہے، آپ نا مائک اپنے قریب کر لیں، یہ اپنے ہیڈ فون کا مائک۔ جی بھائی اب کلیئر ہے آواز؟ بہتر ہے، لیکن تھوڑا سا نا اگر یہ قریب ہو جائے گا تو پھر زیادہ بہتر۔ انشاءاللہ ہو جاتا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہو جاتا ہے جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی جان، شروع کرنے لگو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، عظمت، بزرگی، برتری اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین، احسن الخالقین کے لیے، جو فقط اکیلا اس ساری کائنات کا داتا، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ انگنت اور لا تعداد درود و سلام ہوں حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں آپ تمام بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی
मोहतरम ज़िया रसूल अमीनी भाई के वालिद मोहतरम आज उनका ऑपरेशन है, जिस वजह से वो प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके। उनके लिए खुसूसी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ज़िया रसूल भाई के वालिद मोहतरम को मुकम्मल सेहत व आफियत और ईमान की सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और उनको हर किस्म की परेशानी से बचाए। जैसा कि इस प्रोग्राम के हवाले से तमाम भाइयों पर वाज़े किया गया कि आज के प्रोग्राम का उन्वान है मकाम सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और हकीकत कादियानियत। तो इसी हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके सामने पेश करूंगा और तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि जैसे ही मेरा लेक्चर ख़त्म होगा उसके बाद हर एक को मौजू से रिलेटेड, मौजू से मुताल्लिका सवाल करने की इजाज़त होगी। इंशाअल्लाह उनके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। तो हज़रात गिरामी कदर, ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और दीन इस्लाम ने बैतुल खला में जाने से लेकर के हुकूमतें चलाने तक के लिए एक वाज़ेह लाए अमल दिया है। इस्लामी तालीमात को अवाम तक पहुँचाने में सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के तर्ज जिंदगी को अगर नकाल दिया जाए तो न सिर्फ दीन इस्लाम बिल्कुल अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है, बल्कि ये कहना बजा न होगा कि दीन इस्लाम का बुनियादी ढांचा ही तब्दील हो जाता है। क्योंकि ये सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ही तो थे जिन्होंने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के हयात मुबारका के एक एक लम्हे और एक एक बात को इस तरह अपनी जिंदगियों में अपनाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी अजमत का तज़किरा करते हुए कुरान मुकद्दस में फरमाया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। और जो महाजरीन अंसार साबिक और मुकद्दम हैं और जितने लोग अखलास के साथ उनके पैरोकार हैं, अल्लाह ताला उन सब पे राजी और वो उस पर राजी हुए और अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे बाग, ऐसी जन्नतें मुहैया कर रखी हैं कि जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अजीम कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा में फकत सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को ही नहीं बल्कि उनके पैरोकारों को भी दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरियां दे दी। यानी ये वाज़े कर दिया कि ईमान का दारो मदार जो है वो सहाबा कराम के ईमान की तरह होगा। और मेरे भाइयों, इसी तरह रब्बे कायनात ने कुरान करीम में सूरह आल इमरान में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो जिन्हें लोगों की हदायत के लिए पैदा किया गया है। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन हीदा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नकुम ततम्मूना सबईना उम्मा अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अलल्लाह, कि तुम पूरा करते हो 70 उम्मतों को, यानी तुम 70वीं उम्मत हो, तुम उनमें बेहतरीन हो और तुम अल्लाह ताला के नजदीक उन सब से ज्यादा मोहतरम और मुकर्रम हो। यानी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया कि तुम सबसे बेहतर उम्मत हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि 70 उम्मतें हैं, 70 उम्मतों को तुमने पूरा किया है और तुम 70वीं उम्मत हो और तुम सबसे बेहतरीन हो, अल्लाह के नजदीक और इज्जत और मकाम वाली हो। इसी तरह रब हजरात गिरामी कदर, ये रवायत जो मैंने पेश की है तिरमिज़ी के अलावा इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, दारमी और मुस्तदरक के हाकिम में भी मौजूद है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे हसन और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ने सही और हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतल बारी में से हसन सही करार दिया है। मुस्नद अहमद में सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसी चीजें दी गई हैं जो अंबिया कराम में से किसी को नहीं दी गई। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल वो चीजें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मदर रोब से की गई, मुझे जमीन की चाबियां दी गई, मेरा नाम अहमद रखा गया। हज़रात गिरामी कदर सुनिए,
आज के दौर में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को बशीरुद्दीन महमूद लिखता है कि वो अहमद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद नहीं हो सकते, उसने लिखा है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, और ये रवायत मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, हसन दर्जे की है। फरमाते हैं कि मुझे ऐसी चीजें दी गई हैं जो अंबिया कराम में से किसी को नहीं दी गई। हमने अर्ज किया अल्लाह के रसूल वो चीजें क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मदद रोब से की गई, मुझे जमीन की चाबियां दी गई हैं, मेरा नाम अहमद रखा गया, मट्टी मेरे लिए तहारत का बायस बनाई गई, और मेरी उम्मत तमाम उम्मतों से बेहतर करार दी गई। कुरान मजीद और अहादीस नबविया का ज़ाहरी मस्ताक तो सारी उम्मत है, लेकिन याद रखिए अव्वलीन मस्ताक सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम के अंदर रवायत मौजूद है, खैरु उम्मतिल कर्नुल लज़ीना यलूनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। फरमाया कि जो है मेरी उम्मत जो है, मेरी उम्मत में से मेरे जमाने के लोग जो हैं वो सबसे बेहतरीन लोग हैं जो मेरे जमाने में हैं, और जो उनके बाद हैं, फिर जो उनके बाद हैं। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को सबसे बेहतरीन लोग करार दिया। इसी तरह सुनन नसाई अल कुबरा में सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत बयान करते हैं कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा की इज्जत करो क्योंकि वो तुम में से बेहतरीन है, फिर वो जो उनके बाद हैं, फिर वो जो उनके बाद हैं। अलगर्ज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस मुबारका से, फरामीन नबविया से वाज़ेह हो जाता है कि सहाबा कराम बेहतरीन लोग हैं पूरी कायनात में। और इसी तरह मिशकात शरीफ के अंदर यह रवायत मौजूद है, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, क्या करेमु असहाबी फअन्नहुम खयारुकुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। यानी तुम मेरे सहाबा की तकरीम करो, इज्जत करो, बस वो बेशक तुम में से बेहतर लोग हैं, फिर वो जो उनसे मुतसिल होंगे, फिर वो जो उनसे मुतसिल होंगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बारे में फरमाता है कि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तकवा के लिए मुंतखब कर लिया और उनके लिए मगफरत और अजर अजीम है। और इसी बात को एक और रंग में अल्लाह ताला ने सूरह नमल में बयान फरमाया, कुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। ए नबी आप कह दीजिए कि तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है और उसके मुंतखब बंदों पर सलाम है। अल्लाह ताला अपने मुंतखब बंदों पर सलाम पेश कर रहा है। वो मुंतखब बंदे कौन से हैं? अंबिया के बाद सहाबा हैं, जिनके बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया है कि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने तकवा के लिए मुंतखब कर लिया है और उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम है। और मेरे भाइयों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं, इसी आयत की तफसीर के हवाले से मुस्नद अहमद के अंदर यह रवायत मौजूद है, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बंदों के दिलों को देखा तो तमाम बंदों के दिलों में से बेहतरीन दिल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, तो उसे अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया और उसे अपनी रसालत के साथ मबऊस किया। फिर अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मुंतखब करने के बाद बंदों के दिलों को देखा तो उनके सहाबा का दिल तमाम बंदों के दिलों से बेहतरीन पाया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने नबी का वजीर बना दिया। हज़रात गिरामी कदर, इसी बात की तईद कुरान करीम की एक और आयत मुबारक से भी होती है। चनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह फातिर की आयत है, सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। हमने इस किताब कुरान मजीद के वारिस अपने वो बंदे बनाए जिन्हें हमने चुन लिया। हज़रात गिरामी कदर, ये बात तो तय पा गई कि सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह ताला के
मुंतखब शुदा जन्नती नेक और पाकबाज इंसान थे। इन्हीं सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन के बारे में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब हकीकतुल वही सफा नंबर 35 नंबर है और रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 के सफा नंबर 35 पर लिखता है, हकीकतुल वही में लिखता है, इससे मालूम होता है कि बाज सहाबा इस गलत अकीदे में मुब्तला थे कि गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे। कहता है सहाबा इस गलत अकीदे में मुब्तला थे बाज सहाबा कि ईसा अलैहिस्सलाम इस गोया के दोबारा दुनिया में आएंगे। यानी ये सहाबा का भी अकीदा था जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है कि गलत था। और इसी हयात मसीह के अकीदे को दूसरी जगह पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि फमन सुअल अदब अन युकाला अन्ना ईसा मा माता व इन हुआ इल्ला शिरकुन अजीम। बस ये कहना बेअदबी होगी कि ईसा फौत नहीं हुए और ये शिरक अजीम है जो नेकियों को खा जाता है। ये हज़मीमा हकीकतुल वही है, बाब इस्तफ्ताह है और अरबी में लिखा हुआ है। और इस्तफ्ताह का जो तर्जमा इन्होंने अपनी वेबसाइट पे करके शाया किया है उसका सफा नंबर 94 है, ये आप देख रहे हैं। वाज़े तौर पे इस अकीदे को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बेअदबी करार देता है, शिरक अजीम करार देता है और नेकियों को खा जाने वाला करार देता है। और लिखता है कि बाद सहाबा इस गलत अकीदा में मुब्तला थे जो गोया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे। यानी मिर्जा कादियानी के नजदीक बाद सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मुशरिक थे। हालांकि इस्लाम की जो इस्तिलाह है, इस्लामी इस्तिलाह में सहाबी कहा ही उसे जाता है जो ईमान की हालत में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की जिसने जियारत की हो और ईमान की हालत में ही इस दुनिया फानी से रुखसत हुआ हो और ईमान की हालत पर कायम और दायम रहा हो चेहरा अनवर की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की जियारत करने के बाद। और मिर्जा कादियानी कहता है कि बाद सहाबा शिरक अजीम में मुब्तला थे, वो सहाबा जिनके ईमान को तकवे की गवाही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में दी और कहा कि ये मेरे मुंतखब शुदा चुने हुए लोग हैं। और जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सबसे बेहतरीन लोग हैं दुनिया के, उन सहाबा के बारे में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की ये खबासत आपके सामने है। हज़रात किरामी कदर सही बुखारी किताबुल ईमान के अंदर नबी रहमत अलैहिस्सलाम का फरमाने आलिशान मौजूद है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हुब्बुल अंसार आयतुल ईमान व बुग़्ज़ुल अंसार आयतुन निफाक। यानी अंसार से मोहब्बत ईमान की अलामत है और अंसार से बुग़्ज़ नफाक की अलामत है। एक और मकाम पर प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 72 फिरके थे और मेरी कौम में 73 फिरके होंगे और उनमें से फकत एक फिरका जन्नती होगा। ये सुनकर सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि आका वो फिरका कौन सा होगा, वो गिरोह कौन सा होगा? तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर चलेगा। यानी ईमान, मदारे ईमान जो है वो सहाबा की जिंदगी को ठहराया गया है कि ईमान उस तरह लाना है जैसे सहाबा का ईमान है। आज कादियानी जब भी बात करते हैं पूछते हैं जनाब तुम्हारा फिरका क्या है, और भाई नाम रखने से बात नहीं बनती। और फिर अपने आप को कहते हैं आईने पाकिस्तान के हवाले से जी पार्लियामेंट में एक अखबार नवाए वक्त का तराशा पेश करते हुए जनाब 72 अलग हो गए थे, हम 73वां फिरका है, ये भी इनका झूठ है। पार्लियामेंट के अंदर लाहौरी गिरोह को भी काफिर करार दिया गया था जिन्हें आज कादियानी भी काफिर करार देते हैं। लाहौरी गिरोह कादियानियों के नजदीक भी काफिर है और उस पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ कादियानियों को काफिर नहीं करार दिया गया था बल्कि लाहौरियों को भी काफिर करार दिया गया था। और ये कहना कि 72 एक तरफ से एक तरफ था यह भी इनका झूठ है। और याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर किसी फिरके का नाम नहीं बताया, किसी गिरोह का नाम नहीं बताया जो जन्नती होगा, बल्कि अमल बताया है
وہ عمل کیا ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے. یہ عمل بتایا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نقش قدم پہ چلے گا وہ خروج جنتی ہوگا. پھر آگے بڑھتے ہیں حضرات گرامی قدر. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہی عظمت اور شان ہے کہ منافقین نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کہا، جب اللہ تعالیٰ نے منافقین سے کہا کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں. اسی وقت رب کائنات نے قرآن نازل فرما دیا اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو غبی، احمق یا بے وقوف قرار دے گا، در حقیقت وہ خود احمق ہوگا، وہ خود نادان ہوگا، وہ خود بے وقوف اور جاہل ہوگا. جو صحابہ کو منافق قرار دے گا وہ خود منافق ہوگا. جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تکفیر کرے گا، خواہ وہ جہلمی ہو، روافض ہو یا نواصب ہوں یا مرزا قادیانی کے پیروکار ہوں، یاد رکھیے وہ خود کافر ہیں اور کافر رہیں گے. صحابہ کو منافق قرار دینے والا خود منافق ہے، صحابہ کو کافر قرار دینے والا خود کافر ہے، صحابہ کو احمق قرار دینے والا، نادان قرار دینے والا خود احمق اور نادان اور گستاخ صحابہ ہے. اور سنیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کرام ان میں کون سے ایسے اصحاب حمیدہ تھے کہ جن کی بنیاد پر بہترین اور اللہ کی طرف سے چنیدہ لوگ قرار پائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے انہی اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے رب کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، واضح طور پر اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطاہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے بڑے سخت ہیں اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں. سوال پیدا ہوا یا اللہ کافروں کے ساتھ سخت اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نرم دلی، یہ تو میدان جہاد میں پتہ چلے گا کہ وہ کافروں میں سخت ہوں گے، جب مار کا برپا ہوگا تب پتہ چلے گا، اور مومنوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ رحمت دلی کا تب پتہ چلے گا جب وہ ان کے ساتھ کوئی واسطہ پڑے گا، کوئی کام کا معاملہ ہوگا، کوئی انہیں تکلیف یا پریشانی لاحق ہوگی تب پتہ چلے گا. لیکن یا اللہ ہم کیسے جانیں گے کہ آپ کے صحابہ کی اور نشانی کیا ہے ان حالات کے علاوہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واضح طور پہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور ان کے رکوع، ان کے سجدے اس غرض سے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کی تلاش میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں. جب دیکھو گے وہ رکوع و سجود کریں گے، اذان کی آواز صدا بلند ہوگی، نماز پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، رکوع و سجود کے ان کے آثار ان کے چہروں پر نظر آ رہے ہوں گے. یہ ہیں وہ لوگ اللہ کے صحابہ، اللہ کے نیک بندے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی علامتیں
सजदे के असर से उनके चेहरों पर नुमायां होंगी और इनकी अलामतें नुमायां होंगी। और फरमाता है अल्लाह ताला, ये है उनके वो औसाफ जो तौरात में मजकूर हैं, यानी सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अजमत तौरात में भी मजकूर है और तौरात में ये औसाफ सहाबा कराम के अल्लाह फरमाता बयान किए गए हैं। और इंजील में उनकी मिसाल ये दी गई है कि जैसे एक खेती हो जिसने अपनी कोंपल निकाली हो, फिर उसको मजबूत किया, फिर वो मोटी हो गई, फिर अपने तने पर इस तरह सीधी खड़ी हो गई कि काश्तकार उससे खुश होते हैं, ताकि अल्लाह ताला उनकी इस तरक्की से काफरों का दिल जलाए। ये लोग जो ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किया, अल्लाह ताला ने उनसे मगफरत और जबरदस्त सवाब का वादा किया है। ये हैं वो सहाबा, इस वजह से वो अल्लाह के चुनिंदा हैं। कैसे रहम दिल हैं, आइए आपको एक दो वाकया सुनाऊं। हिजरत का वाकया देखिए। अंसार हिजरत का महाजरीन हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में आते हैं। एक साहबी खड़े होते हैं, अब दो बीवियां हैं, कहते हैं ऐ मेरे साथी, इन दोनों बीवियों में से मेरी में से एक बीवी को पसंद कर ले, जिसको तू कहेगा मैं उसे तलाक दे दूंगा, तो उसके साथ निकाह कर लेना। ये इसार और ये कुर्बानियां हैं। एक साहबी उठते हैं, ये मेरे दो मकान हैं, इसमें से मैं एक मकान जो है आपको दे देता हूं, एक अपने लिए रख लेता हूं। किसी का कारोबार है, वो कहता है मैं अपने आप को अपने कारोबार में शराकतदार ठहराता हूं। आज के दौर में है कोई मिसाल ऐसी? कई कई मकान, कई कई घर मौजूद हैं लोगों के। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने साथियों को वो घर दिए हों कि भाई हमारा फलां भाई, हमारा फलां दीनदार भाई बेघर है, उसको हम घर अनायत कर दें। कितने लोग हैं जिन्होंने ये कुर्बानियां दी हों कि कोई बेरोजगार है उसका रोजगार चला दें। ये वही अल्लाह के मुंतखब शुदा सहाबा कराम थे जिनका ये जज्बा ईमानी था, जिनके दिलों में ये तकवा तहारत थी, इसार और कुर्बानी का जज्बा मौजूद था, मर मिटने का जज्बा था, सहाबा से मोहब्बत और प्यार थी एक दूसरे से। हजरात ग्रामी कदर, ये जो कुरानी आयात और अहादीस मुबारका से मैंने वाज़ेह कर दिया है कि सहाबा कराम की अजमत का इकरार, इज्जत की हिफाजत और उनकी पैरवी करना ईमान का हिस्सा है। और जो कोई शख्स किसी एक सहाबी रसूल के बारे में भी गलत अकीदा रखेगा और सहाबा कराम को माज़ल्ला कभी या अहमक वगैरह करार देगा, तो वो मुसलमान और मोमिन कहलाने का हकदार नहीं होगा। और इसी तरह हजरात ग्रामी कदर, आइए सूरत अल हदीद में अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाह वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन कब्लिल फतह वकातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफकू मिन बाद वक्तुलू वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। आखिर क्या वजह है? अल्लाह फरमाता है, आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, हालांकि जमीन और आसमानों की मिरास अल्लाह ही के लिए है। तुम में से जो लोग फतह के बाद खर्च और जहाद करेंगे, और वो कभी उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने फतह से पहले खर्च और जहाद किया है। उनका दर्जा बाद में खर्च और जहाद करने वालों से बढ़कर है, गर्चे अल्लाह ने दोनों ही से अच्छे वादे फरमाए हैं। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बखबर है। हजरात ग्रामी कदर, इस आयत से पता चलता है कि फतह मक्का से पहले जिन सहाबा ने ईमान लाए और जो खर्च किया अल्लाह की राह में, जो कुर्बानियां दी, उसके बाद ईमान लाने वाले और खर्च करने वाले, कुर्बानियां देने वाले बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह हजरात ग्रामी कदर, बुखारी और मुस्लिम के अंदर हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बू असहाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दन अहदिहिम वला नसीफहु। तुम मेरे सहाबा को गाली न दो, अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ की मिसल सोना खर्च करे, वो उनमें से किसी एक मुद और ना ही आधे मुद खर्च करने के बराबर सवाब को पहुंच सकता है। उहद पहाड़ कितना बड़ा है, कभी सोचा? उसके बराबर सोना खर्च कर लेने के बावजूद
सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन के एक मुद या आधे मुद खर्च करने के सवाब को नहीं पहुंच सकता। हजरात ग्रामी कदर इन आयात करीमा और अहादीस नबविया से ये बात साबित होती है कि सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में से भी जो लोग साबिकून अव्वलून और मुहाजिरीन और अंसार हैं, बाद में ईमान लाने वाले सहाबा कराम भी उनके मकाम और मर्तबे और अजर और सवाब को नहीं पहुंच सकते। जबकि कादियानियों का दूसरा खलीफा मिर्जा कादियानी का बड़ा बेटा बशीरुद्दीन महमूद 1935 में कादिया में होने वाले अपने सालाना जलसा में तकरीर करते हुए उस तकरीर के दौरान अपना अकीदा इस तरह बयान करता है, कहता है कि मेरा अकीदा यही है कि बाद में आने वाले लोग भी तरक्की कर सकते हैं, बल्कि बाज सहाबा से भी बढ़ सकते हैं। अल-फज़ल अखबार है 14 मार्च 1936 का। इसी तरह नवारुल उलूम के अंदर तहरीक जदीद के मकासद के उन्वान से उसकी ये तकरीर मौजूद है, अनवारुल उलूम जिल्द 14 में। और उसने वाज़े लिखा कि मेरा ये अकीदा है कि जो है सहाबा से भी बढ़ सकते हैं और जरूरी नहीं कि बाद में आने वाले तमाम बुजुर्ग सहाबा से कम दर्जा रखने वाले हों। हो सकता है कि उम्मत मोहम्मदिया के कई ऐसे बुजुर्ग हों जो सहाबा से अफजल हों, बल्कि यकीनन उम्मत मोहम्मदिया में ऐसे बुजुर्ग हुए हैं जो कई सहाबा से अफजल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अपने उस दौर के सहाबा को कि फतह मक्का से पहले ईमान लाने वालों से बाद में ईमान लाने वाले नहीं बढ़ सकते। अपने सहाबा के बारे में फरमाए कि अगर मेरे वो सहाबा ओहद एक मुद या आधे मुद के बराबर खर्च करें और बाद में आने वाले ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दें, उनके सवाब उनके मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकते। और बशीरुद्दीन महमूद कहे कि मेरा ये अकीदा है कि आज के दौर में भी सहाबा से बढ़ सकते हैं, और कहता है जरूरी नहीं कि बाद में आने वाले तमाम बुजुर्ग सहाबा से कम दर्जा रखने वाले हों, कि उम्मत मोहम्मदिया में कई ऐसे बुजुर्ग हों जो सहाबा से अफजल हों, बल्कि उम्मत मोहम्मदिया में ऐसे बुजुर्ग हुए हैं जो कई सहाबा से अफजल थे। यह है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का अकीदा। अहमद रजा भाई, इसका अगला स्कैन भी अखबार का भी दिखा दीजिए। अगला स्कैन अखबार का है, वो भी दिखा दीजिए इनको। ये देखिए रूहानी तरक्की का दरवाजा, ये अखबार अल-फज़ल में भी ये खुतबा छाया हुआ है, यही अल्फाज उसी तकरीर के हैं। और हजरात ग्रामी कदर, ये अकीदा बशीरुद्दीन महमूद का ही नहीं बल्कि कादियानियों के खुद साख्ता मुंह बोले नबी, सो कार्ड नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का भी था, जिसने अपने मरीज साहबजादा अब्दुल लतीफ की हलाकत को सिद्क़ वफा और इस्तकामत में सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा हुआ करार दिया है। इंशाल्लाह इसकी तफसील जो है इसी गुफ्तगू के अगले हिस्से में बयान करूंगा कि मकाम हसन हुसैन रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन क्या था, और उस हवाले से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके पैरों ने क्या क्या खबासतें की हैं। लेकिन सरे दस्त ये बताना चाहता हूं, ये अकीदा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का भी था, और ये अकीदा जो है वो बशीरुद्दीन महमूद का भी है, और आज के मिर्ज़ाइयों का भी है। और सुनिए, एक जगह पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम रूहानी जिल्द 21 के सफा नंबर 285 पर लिखता है कि बाज नदान सहाबी जिनको दरायत से कुछ हिस्सा ना था, सहाबा किराम के बारे में कहता है कि उनको दरायत से कुछ हिस्सा नहीं था। आगे बढ़िए, मिर्जा कादियानी ने जहां पर अपने आप को इब्नुल्लाह यानी अल्लाह का बेटा करार देने की नापाक जसारत की है, वहीं पर उस खबीस ने खुद को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करार दिया है। और इस अंग्रेज के खुदकाश्ता पौधे ने उम्मत मुसलमा में इंतशार और इफ्तराक पैदा करने और दीन इस्लाम की जड़ों को खोखला करने के लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर भी कीचड़ उछाला है।
आइए अब मैं आपके सामने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की ज़र्रियत की तरफ से तौहीन सहाबा के चंद नमूने पेश करना चाहता हूँ। सुनिए, ये बात भी याद रखिए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद को अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह करार दिया और लिखा अपनी किताब गलती का असाला में, रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफा नंबर 212 पर लिखता है, मगर मैं कहता हूं कि हजरत सल्लम के बाद जो दर हकीकत खातमुन नबीयीन थे, मुझे रसूल और नबी के लफ्ज से पुकारे जाना कोई एतराज की बात नहीं, और ना ही उससे मोहरे खत्मियत टूटती है, क्योंकि मैं बार बार बतला चुका हूं कि मैं बमुजब आयत व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकु बिहिम वही खातमुल अंबिया हूं। और खुदा ने आज से 20 बरस पहले बराहीन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है और मुझे हजरत सल्लम का वजूद करार दिया है। सुनिए, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भींगी आंखों वाला कहता है मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद करार दिया, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर आगे लिखता है, बस इस तौर से हजरत सल्लम के खातमुल अंबिया होने में मेरी नबुव्वत से कोई तजल्जुल नहीं आया, क्योंकि जिल अपने असल से अलहदा नहीं होता, और चूंकि मैं जिल्ली तौर पर मोहम्मद हूँ, बस इस तौर से खातमुन नबीयीन की मोहर नहीं टूटी, क्योंकि मोहम्मद की नबुव्वत मोहम्मद ही तक महदूद रही, यानी बहरहाल मोहम्मद ही नबी रहे और ना और कोई। यानी जबकि मैं बरोजी तौर पर हजरत सल्लम हूँ और बरोजी रंग में तमाम कमालात मोहम्मदीन अल्फाज को जहन नशीन कर लीजिए। मेरा ये सवाल है कादियानी मरब्बियान से भी और आम कादियानियों से भी, गौर कीजिएगा, तवज्जो कीजिए, जहां पर मैं सवाल पेश करूंगा अपना। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, जबकि मैं बरोजी तौर पर हजरत सल्लम हूँ और बरोजी रंग में तमाम कमालात मोहम्मदी मा नबुव्वत मोहम्मदिया के मेरे आईना जिल्लियत में मुनक्कस हैं, तो फिर कौन सा अलग इंसान हुआ जिसने अलहदा तौर पर नबुव्वत का दावा किया। तो कादियानी हजरात, यहां पर मेरा सवाल जो है वो सुनिए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है कि तमाम कमालात मोहम्मदी मा नबुव्वत मोहम्मदिया के मेरे आईना जिल्लियत में मुनक्कस हैं। अब मैं पूछता हूं, नबुव्वत मोहम्मदिया शरई थी या गैर शरई थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब शरीयत रसूल थे या गैर शरई नबी थे? साहब शरीयत रसूल मानते हो तो मिर्जा कादियानी का यह दावा बातिल होता है कि तमाम कमालात मोहम्मदी नबुव्वत मोहम्मदिया समेत उसके आईना जिल्लियत में मुनक्कस हैं। फिर उसको भी साहब शरीयत रसूल मानो अगर ये दुरुस्त मानते हो। और यहाँ पर मिर्जा कादियानी को अगर साहब शरीयत रसूल नहीं मानते तो तस्लीम करो कि मिर्जा कादियानी का ये दावा बातिल है, झूठा है, क्योंकि वो एक कज़ाब दज्जाल है। कोई बंदा नहीं साबित कर सकता। जहां पर वाज़े उसने लिखा है कि तमाम कमालात मोहम्मदी मा नबुव्वत मोहम्मदिया के, नबुव्वत मोहम्मदिया शरई नबुव्वत है और कमालात मोहम्मदी, इस पर अगर तबसरा करना लगो तो बहुत लंबी बात चली जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल तो ये भी था कि अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल अलल मोमिनीन हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल, क्या मेरे नबी मोमिनों को कताल पर उभारिए। ये तो नबी से जहादो कताल थे, इसने तो जहाद को मनसूख करार दिया है। तमाम कमालात कैसे हुए सुनिए। फिर इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आगे लिखता है, इसी अपनी किताब गलती का अजाला में सफा नंबर 207-8 पर, कि नबुव्वत की तमाम खिड़कियां बंद की गईं मगर एक खिड़की सीरत सदीकी की खुली है, यानी फना फिर रसूल की। बस जो शख्स इस खिड़की की राह से खुदा के पास आता है उस पर जिल्ली तौर पर वही नबुव्वत की चादर पहनाई जाती है जो नबुव्वत मोहम्मदी की चादर है। इसलिए उसका नबी होना गैरत की जगह नहीं, क्योंकि वो अपनी जात से नहीं बल्कि अपने नबी के चश्मा से लेता है, और न अपने लिए बल्कि उसी के जलाल के लिए। इसलिए उसका नाम आसमान पर मोहम्मद और अहमद है। उसके ये माना है कि मोहम्मद की नबुव्वत आखिर मोहम्मद को ही मिली, वो बरोजी तौर पर, मगर ना कि किसी और को।
यानी मिर्जा कादियानी कहता है उसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत मिली है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर भी सवाल है कि नबुव्वत शरई थी या गैर शरई थी। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत मिली है तो बताइए वो शरई नबुव्वत थी या गैर शरई थी। तो फिर मिर्जा कादियानी का दावा तो शरई नबुव्वत का होना चाहिए, ना कि गैर शरई नबुव्वत का। फिर आगे बढ़िए, इसी किताब के सफा नंबर 209 पर रूहानी हुसैन जिल्द 18 पर आगे लिखता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, लेकिन अगर कोई शख्स इसी खातमुन नबीयीन में ऐसा गुम हो कि बबाइस नहायत इत्तेहाद और नफिये गैरियत के इसी का नाम पा लिया हो और साफ आईना की तरह मोहम्मदी चेहरा का उसमें नकाश हो गया हो, तो वो बगैर मोहर तोड़ने के नबी कहलाएगा, क्योंकि वो मोहम्मद है वो जिल्ली तौर पर। बस बावजूद उस शख्स के दावा नबुव्वत के जिसका नाम जिल्ली तौर पर मोहम्मद और अहमद रखा गया, फिर भी सैयदना मोहम्मद खातमुन नबीयीन ही रहा, क्योंकि ये मोहम्मद सानी। और सुनो, उम्मत मुसलमा का अकीदा है कि पूरी कायनात एक तरफ हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हो सकती। मोहम्मद सानी तो कहां पर, एक ही वो शख्सियत थी, एक ही वो जाते मुकद्दस थी, एक ही वो जाते आला व अरफा थी जो अल्लाह ताला ने पैदा की, जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इसके अलावा कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं ना आ सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह की ला की तलवार ने तमाम गैर इलाहों को, गैर मबूदों को खत्म कर दिया, इसी तरह वही ला की तलवार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मौजूद है कि सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनके अलावा कोई दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं है। जिस तरह कोई एक अल्लाह है उसके अलावा कोई अल्लाह नहीं, इसी तरह एक ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसके अलावा कोई और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं। और ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है क्योंकि ये मोहम्मद सानी उसी मोहम्मद की तस्वीर और उसी का नाम है। फिर आगे बढ़िए, मिर्जा कादियानी का बेटा मिर्जा बशीर अहमद अपनी किताब कलमतुल फसल में लिखता है, सुनिए, कलमतुल फसल के सफा नंबर 104 और 5 पर लिखता है, और चूंकि मशाबत तामा की वजह से मसीह मौद और नबी करीम में कोई दुई बाकी नहीं कि इन दोनों के वजूद भी एक वजूद का ही हुक्म रखते हैं। और सुनो, ये प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का वजूद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद एक ही वजूद का हुक्म रखते हैं। जैसा कि लिखता है, जैसा कि खुद मसीह मौद यानी मिर्जा कादियानी ने फरमाया कि सारू वजूदी वजूदहू, खुतबा अलहामिया सफा 171 की ये तहरीर है मिर्जा कादियानी की। फिर आगे लिखता है, और हदीस में भी आया है कि हजरत नबी करीम ने फरमाया कि मसीह मौद मेरी कब्र में दफन होगा। हालांकि वहां पर कब्री बमाना मकबरा है, और आज भी देखिए रोजा रसूल में एक कब्र की जगह खाली है जहां पर सैयदना ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम जब नाज़िल होंगे तो वो दफन होंगे। कब्री से मुराद वहां पर मकबरा है, लेकिन यहाँ पर इसने ये हदीस की तहरीफ करते हुए बयान किया, मानवी तहरीफ बयान करते हुए कि और हदीस में भी आया है कि हजरत नबी करीम ने फरमाया है कि मसीह मौद मेरी कब्र में दफन किया जाएगा, जिससे यही मुराद है कि वो मैं ही हूं। यानी मसीह मौद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग कोई चीज नहीं, बल्कि वही है जो बरोदी रंग में दोबारा दुनिया में आएगा ताकि अशात सलाम का काम पूरा करे। और हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले के फरमान के मुताबिक तमाम अदियान बातिला पर तमाम हुज्जत करके इस्लाम को दुनिया के कोनों तक पहुंचावे। तो इस सूरत में क्या इस बात में कोई शक रह जाता है कि कादियां में अल्लाह ताला ने फिर मोहम्मद को उतारा, कादियां में अल्लाह ताला ने फिर मोहम्मद को उतारा ताकि अपने वादा को पूरा करे जो उसने आखरीन मिनहुम लम्मा यलहकु बिहिम में फरमाया था। यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कादियानियों के नजदीक मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो हजरात गिरामी कदर, बाज लोग जो हैं कादियानियों के कलमा पढ़ने से भी धोखा में आ जाते हैं कि देखें जी ये भी तो कलमा पढ़ते हैं, लिहाजा ये भी मुसलमान ही हैं। हालांकि कादियानी ग्रोह कलमा में जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज अदा करता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद
सिर्फ नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं लेता, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भी शामिल करता है, समझता है कि वो भी कलमा का हिस्सा है। तो ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मिर्जा कादियानी के बेटे मिर्जा बशीर अहमद को सवाल हुआ कि तुमने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी माना है, तो अपना अलग से कलमा क्यों नहीं बनाया? तो आगे से जवाब मिलता है, कलमातुल फसल है, किताब सफा नंबर 158 है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का बेटा मिर्जा बशीर अहमद, जिसे कादियानी कमरुल अंबिया के लक़ब से पुकारते हैं, वो लिखता है कि हमको नए कलमे की जरूरत पेश नहीं आती, क्योंकि मसीह मऊद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अलग चीज नहीं है। जैसा कि वो खुद फरमाता है, सार वजूदी वजूदहु नीज मिन फरक बैनी व बैनल मुस्तफा फमा अरफानी व मा राया। और ये इसलिए है कि हक ताला का वादा था, वो एक दफा खातमुन नबीयीन को दुनिया में मबूस करेगा, जैसा कि आयत आखरीन मिनहुम से जाहिर है। बस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, बस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो अशात अस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए। इसलिए हमको किसी नए कलमे की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो जरूरत पेश आती। तो सुनिए हजरात ग्रामी कदर, ये है कादियानियों के कलमा की भी हकीकत। और इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब खुतबा अल हामिया के सफा नंबर 171 रूहानी खज़ाइन जिल्द 16 सफा नंबर 259 पर लिखता है, और जो शख्स मजमे और मुस्तफ़ा में तफरीक करता है, उसने मुझे नहीं देखा और ना पहचाना है। इसी तरह अपनी किताब हकीकतुल वही ततम्मा हकीकतुल वही के सफा 68 पर रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 के सफा नंबर 502 पर लिखता है, बस इससे साबित होता है कि आने वाली कौम में एक नबी होगा कि वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरोज होगा, इसलिए उसके असहाब आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब कहलाएंगे। यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कादियानियों के नजदीक खुद माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसके साथी जो मुर्तद और जिंदीक हैं, वो उनके नजदीक असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये मिर्जा कादियानी खुद लिखता है कि इसलिए उसके असहाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब कहलाएंगे। इसी तरह मिर्जा कादियानी अपनी किताब खुतबा अल हामिया में ही लिखता है, बस वो जो मेरी जमात में दाखिल हुआ, दर हकीकत मेरे सरदार खैरुल मुरसलीन सहाबा की जमात में दाखिल हुआ। लीजिए जनाब, ये भी खुतबा अल हामिया सफा नंबर 171 पर जिल्द 16 सफा नंबर 258 पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने लिखा है कि बस वो जो मेरी जमात में दाखिल हुआ, वो मेरे सरदार खैरुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में दाखिल हुआ। तो हजरात गिरामी कदर, आज आपके सामने मैंने मकाम सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और फितना कादियानियत के बारे में, हकीकत कादियानियत जो वाज़े की है, आज उसका पहला हिस्सा पेश किया है। इंशाअल्लाह अगले जुमे यहीं से सिलसिला शुरू करूंगा, फिर बताऊंगा कि सैयदना अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा क्या था और क्या है, और इन्होंने उनके मकाम व मर्तबे में, उनकी शान अक़दस में किस किस तरह गुस्ताखियां की हैं। इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन के बारे में क्या मकाम और मर्तबा, उनकी शान और अजमत है। सैयदा खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की अजमत और उनकी शान, और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने उनकी अजमत और शान के बारे में क्या खबासत की है। इसी तरह सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा, उनकी अजमत, और कादियानियों ने क्या उनके बारे में लिखा है। इसी तरह सैयदना हसन हुसैन रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिनके बारे में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मेरे बेटे हैं, उनके बारे में। और इसी तरह सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में, और दीगर सहाबा के बारे में, उनका अलग अलग उनकी अजमत, उनकी शान, उनका मकाम व मर्तबा बयान करता चला जाऊंगा, और कादियानी अकायद और नज़रियात, उनकी हकीकत आपके सामने पेश करता चला जाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक दे और हक बात को समझने और कबूल करने की तौफीक दे। अब जिस भाई का जो भी सवाल हो वो कर सकता है। अहमद रजा भाई लिंक को जो है स्ट्रीम में शिरकत के लिए उसको शेयर कर दें, ताकि दो सवाल करना चाहते हैं करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।
جی جزاک اللہ بیت اللہ لطیف بھائی، لنک کو شیئر کر دیا گیا ہے آڈینس میں سے، اگر کسی نے کوشچن کرنا ہو، کوئی سوال ہو کسی قسم کا لیکن آج کے موضوع سے متعلق، لازمی طور پہ لنک جوائن کریں، اپنا سوال کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، لیکن موضوع سے متعلق سوال کیجیے گا۔ جزاک اللہ بیت اللہ لطیف بھائی، ایک سوال ابھی یہ ساری گفتگو سن کے میرے ذہن میں آیا ہے، وہ سوال آپ جی سے بھائی ایک سوال کہ مرزا جی قادیانی نے اپنی کتابوں میں جا بجا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی، اگر ترتیب میں، پھر تمام انبیاء کی بھی گستاخی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، یہ کیا کافی نہیں تھا؟ اس کا کیا مشن کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا کہ اس نے صحابہ اکرام کی بھی گستاخی کر دی؟ مطلب کہ اسلام کے جو میجر سب سے عظیم چیز اسلام ہے مطلب اللہ تعالیٰ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن جب اس نے مطلب بڑے جو ہیں ان پہ ٹارگٹ کر دیا، ان پہ حملہ کر دیا، پھر یہ صحابہ اکرام کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ کیا تھی اس کی؟ میرے بھائی دیکھیے، سب سے بڑی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ دین اسلام ہم تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے پہنچا ہے۔ ایک ایک عمل جو ہے ہماری شریعت کا، نماز کا طریقہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ اور حج کرتے ہوئے کس نے دیکھا؟ یعنی ایک ایک عمل ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے پہنچا۔ اب جب صحابہ کرام کو ٹارگٹ کیا جائے گا، جب صحابہ کرام کا کردار ہی مشکوک کر دیا جائے گا، تو پورے کا پورا دین اسلام مشکوک ہو جائے گا۔ آج جہلمی کا بھی یہی نظریہ ہے، انجینئر صاحب کا، اسی طرح روافظ کا بھی یہی نظریہ ہے، اور نواصب کا بھی، جو ناصبی ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہے، وہ بھی اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور مرزا غلام محمد قادیانی کا بھی یہی نظریہ تھا۔ ایک اور بڑی وجہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جہاد و قتال کیا ہے، کسی جنگ میں پیچھے نہیں رہے۔ غزوہ تبوک میں صحابہ پیچھے رہ گئے، 3 صحابی، تو ان کا ذکر قرآن کریم میں آیا، ان پر کیسی سختیاں ہیں اور کس طریقے سے ان کی توبہ قبول کی گئی، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ صحابہ کرام نے جہادی مشن کو اپنایا تھا، اور اس نے واضح طور پہ اپنے، یہ اب ہم کہتے ہیں نا، اس نے کہا ہے کہ جہاد حرام ہے، اب جہاد منع ہے، تو عموماً قادیانی کہتے ہیں جناب مرزا صاحب نے کہا ہے، اس بنیاد پہ کہا ہے کہ شرائط موجود نہیں تھی، جہاد کو منسوخ قرار نہیں دیا۔ حالانکہ مجموعہ اشتہارات میں اس نے 2 ٹوک اور واضح الفاظ میں جہاد کو منسوخ قرار دیا ہے۔ میرے پاس اس کا ایک حوالہ پورا موجود ہے، انشاءاللہ اگر کہیں گے تو وہ کسی وقت آپ کو پیش کر دوں گا کہ جہاد کو نہ صرف منسوخ قرار دیا، بلکہ وہاں پر اس نے لکھا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعث کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کی جہاد کو منسوخ کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا، اور میری بعث کا مقصد بھی یہ ہے کہ جہاد کو روکنا، جہاد سے منع کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا، اصلاح معاشرہ کرنا۔ اب اس نے اصلاح معاشرہ کیا کی ہے؟ در حقیقت اس کا مقصد دین اسلام کے پورے ڈھانچے کو تبدیل کرنا تھا، اور آج دیکھیں آپ ایک ایک چیز میں تبدیلی ہے۔ اگر آپ نماز کے بارے میں دیکھیں تو اس نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ نماز جو ہے پڑھ لو یا نہ پڑھو۔ یہ سیرت المہدی کی روایت ہے کہ مرزا صاحب کہتے تھے پڑھنی چاہیے، پڑھ لو تو ثواب کوئی نہیں، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ بھی قرآن کریم کی مخالفت ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ کہتا ہے نہیں، لیلۃ القدر ایک رات نہیں ہے، بلکہ یہ مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں دیکھیں، اس کا فرشتوں کے بارے میں نظریہ ہے کہ فرشتے چاند اور ستاروں کے ساتھ اٹیچ ہیں، سورج کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ فرشتے سورج اور ستاروں کے ساتھ اٹیچ ہیں، جبرائیل سورج کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان سے الگ نہیں ہوتے، وہاں سے اوپر سے تجلی ڈالتے ہیں۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے آ کے بیٹھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اصل شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے جبرائیل کو علیہ السلام کو۔ یعنی کہ یہ پورا ایک اسلامی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی غیر مسلموں کی سازش تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن امت مسلمہ نے اس کے آگے یہ بند باندھ دیا کہ ان کو امت سے باہر نکال کیا، اور کہہ دیا کہ ان کا امت سے تعلق نہیں ہے، یہ مرتد اور زندیق ہیں، یہ کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ امت اس کو قبول کرتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کافر ان کو حقیقی اسلام کے طور پہ لے رہے ہیں، ریئل اسلام کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔
لیکن حقیقی اسلام کیا ہے؟ وہ امت مسلمہ کا، ان کا دین اسلام سے تعلق نہیں ہے. ان کا مقصد صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کو مکمل تبدیل کر کے اسلام کے متبادل ایک نیا ڈھانچہ تشکیل دینا تھا، جس سے اسلام کی اصل جو شکل ہے وہ مسخ کی جا سکے. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ. جٹ چودھری صاحب تشریف لائیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مسلمانوں کو، تمام ساتھیوں کو. احمد بھائی آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز کلیئر ہے. آج کے موضوع سے متعلق کوئی آپ کا سوال ہو، بیت اللہ لطیف بھائی سے سوال کر رہے ہیں یا اس پروگرام کو مزید بہتر کرنے کے لیے کوئی رائے ہو وہ پیش کریں. میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ. ایک تو جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا، جو سوال آپ نے عبید بھائی سے بھی پوچھا، جی دیکھیں احمد بھائی، ہر مذہب کی نا کچھ بنیادیں ہوتی ہیں. میں نے یہ غالباً ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی. کچھ جہتیں ہوتی ہیں زندگی کے، کچھ پہلو ہوتے ہیں جن کو مذہب یا دین جو ہے نا وہ ایڈریس کرتا. جو یہ قادیانیت کا مذہب ہے نا، اس کو اسلام کے بالکل پیرالل اور ایک اپوزٹ ڈائریکشن میں متضاد رویوں کے ساتھ، متضاد نظریات کے ساتھ ڈیولپ کیا گیا. ہر جو چیز اسلام کی ہے، اس کا جو اسلام کا نظریہ ہے اس سے متضاد نظریہ لے کے اس چیز کو پورٹرے کیا گیا، دنیا کے سامنے رکھا گیا. ٹھیک ہے. اب جیسے عبید بھائی بھی بات کر رہے تھے، اب عبادات ہیں یا عقائد ہیں کسی بھی مذہب کے، یہ بنیاد ہوتی ہیں. بنیادی طور پہ جو عقیدہ ہوتا ہے نا، مذہب کی بنیاد اس کے اوپر ہوتی ہے. تمام عقائد، تمام عوامل جو بھی اس مذہب کے ہوں گے، جو بھی اس کی تشریحات، اصطلاحات ہوں گی، وہ تمام کی تمام ان عقائد سے اخذ کی جاتی ہیں. اب جب ایک متضاد مذہب کریٹ کیا گیا نا، تو اس میں ہر چیز کو اسی حساب سے انہوں نے ڈرا کر دیا. اب صحابہ کرام کے حوالے سے جو بات عبید بھائی نے بھی کی، بڑی اچھی بات کی کہ میں اسلام مینلی ہی ان ذوات کے تھرو رہا ہے. وہ ذاتیں ہیں جن کے تھرو ہمیں پتہ چلا اسلام ہے کیا. ڈائریکٹ تو ہمارے پاس چیز کوئی پہنچی نہیں. جب آپ سورس کو وہ کر دیں گے نا، شک ڈال دیں گے سورس کے اندر کہ یہ سورس مشکوک ہو گیا. جب سورس مشکوک ہو گیا تو اوریجنل چیز بھی مشکوک ہو گئی. پھر یہاں پہ ان کا ٹارگٹ وہی ہے کہ صحابہ کرام کو مشکوک کر دو تاکہ آگے جو ہے نا وہ سلسلہ کہانی جو ہے نا وہ عوام کی ختم ہو جائے، اسلام مشکوک ہو جائے. دوسری بات میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں صحابہ جو ایک ٹرم ہے نا، یہ صرف ایک ٹرم نہیں، یہ پورا بلیف ہے ہمارا، ایک پورا عقیدہ ہے. اسلام کا ایک پورا نظریہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. یہ صرف ایک لفظ نہیں کہ جس کا استنباط جو ہے وہ کسی بھی شخصیت کے اوپر کر دیا جائے گا. اس کے لیے ایک پورا سسٹم، ایک سٹرکچر ڈیولپ کیا ہے اسلام نے. صحابی کس کو کہا جائے گا؟ اب صحابی ہر اس شخص کو نہیں کہہ دیا جائے گا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ٹھیک ہے. اور نہ ہر اس شخص کو کہا جائے گا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام جو ہے ایمان لایا تھا. کیوں کہ اس کے ساتھ ایک شرط اٹیچ کی گئی کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہونا چاہیے. کئی لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی لیکن ان کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہے، بعد میں مرتد ہوئے ہیں وہ، جن سے پھر مسلمانوں نے جہاد بھی کیا. تو صحابی کی باقاعدہ ایک ڈیفینیشن دی گئی. اب کوئی بھی شخص اس ڈیفینیشن کے اوپر اس دور کے بعد تو پورا اتر ہی نہیں سکتا. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے، اب جب انہوں نے پردہ فرما لیا تو اب تو وہ ایک شرط ہی پوری نہیں ہو رہی، تو اس ٹرم کو آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہو؟ یہاں سوال سب سے بڑا یہ اٹھتا ہے نا اس چیز کے اوپر کہ جو اس نے وہ منہ اٹھا کے جو ہے وہ ساروں کو ہی جی یہ بھی صحابی کے مرتبے پہ پہنچ سکتا ہے، وہ مرتبے پہ تو تب پہنچے نا جب وہ شرائط پوری کرے. اب وہ جب ایک شرط کی بنیادی شرط ہی نہیں پوری کر رہا ہے ایک شخص، تو وہ کیسے اس مرتبے کو پہنچے گا؟ بالکل ٹھیک. جزاک اللہ چودھری صاحب، جزاک اللہ. وقت جو ہے تقریباً ہمارا پورا ہو رہا ہے. 1 گھنٹہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. اور نیکسٹ کالرس جو ہے ہمارے ساتھ عمران احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے میری احمد رضا بھائی؟ جی عمران صاحب بالکل آواز آ رہی ہے. جی ماشاء اللہ سوال جواب کا سیکشن ہے لیکن سوال کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے کیونکہ اتنی زیادہ دلیلیں جو ہے وہ عبید اللہ لطیف صاحب نے پیش کی. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی انفارمیشن ہمیں سیکھنے کو ملا. اس کے لیے بہت اپریشیٹ کروں گا عبید اللہ لطیف صاحب کو، آپ کو، اور جٹ چودھری صاحب نے بھی بہت مطلب فائدہ پہنچایا. ایک یہ کہ اس کے اندر میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنے بھی تھے ان کی گستاخیاں جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کی.
अल्लाह पाक की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ताबईन की, तबा ताबईन की, यहाँ तक के दूसरे मज़ाहिब को भी नहीं छोड़ा, दूसरे मज़ाहिबों को भी उसने नहीं छोड़ा। हिंदुओं को उसने गाली दी, दूसरे क्रिश्चियंस को उसने गाली दी। तो कैसे अहमदी मुसलमान जो अहमदी जो जमात अहमदिया जितनी भी है इसी बुनियाद पे जो चल रही है, कादियानी लोग जितने भी हैं, तो वो किस तरह से जो है वो ऐसे इंसान को अपना नबी मान लेते हैं? ये एक छोटा सा सवाल जो है अर्ज था खालसा। जी उबैद भाई कि उसने इतनी गुस्ताखियां भी की हैं तमाम मज़ाहिब के काबिरीन की, मतलब जो उनके पेशवा है और उम्मत मुस्लिम का काबिरीन की भी, तो फिर क्यों वो इसे नबी मान लेते हैं? इसका क्या जवाब है जी? ये देखिए भाई, बात ये है कि इन्होंने मिर्जा साहब को नबी कैसे मान लिया। एक तो सवाल ये है, बादल लतीफ़ भाई माइक थोड़ा सा करीब कर ले, आवाज स्लो है। एक तो सवाल ये किया है भाई ने कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को इतनी गुस्ताखियों के बावजूद इन्होंने नबी कैसे मान लिया। तो मेरे भाई देखें, क्या दज्जाल के पैरोकार नहीं होंगे? किसे नहीं पता दज्जाल की निशानियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई। आप इस तरह मिसाल ले रहे हैं, आपके पास एक सिगरेट की डब्बी, आप तंबाकू नोशी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट की डब्बी के ऊपर वाज़ेह तौर पे नहीं लिखा हुआ कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है और कैंसर की तस्वीर नहीं बनाई हुई, इसके बावजूद लोग सिगरेट क्यों पी रहे हैं? ये वही लोग हैं जो दज्जाल के पैरोकार हैं। आपको सच्ची बात बताऊं, दज्जाल की पैरवी करने वाले हैं ये कादियानी हज़रात। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी कज़्ज़ाब दज्जाल था और अबू जाल के मानने वाले भी थे, मसैलमा कज़्ज़ाब के मानने वाले भी थे। क्या उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां नहीं की थी? उसके भी मानने वाले थे। हकीकत में ये जो चीज़ें आपके सामने पेश की जा रही हैं ना, अमूमन ये आम कादियानियों के सामने भी पेश नहीं की जाती, ये छुपाई जाती हैं। जो अकायद हम ज़ाहिर करते हैं ना, इनको छुपाया जाता है, लोगों के सामने लाया नहीं जाता जिस तरीके से। एक बात, दूसरी बात, ये लोगों के सामने यही कहा जाता है जी वो तो इमाम मेहदी हैं। बस किसी भी नए बंदे को फांसना है, इस बुनियाद पे फांसना है जी वो तो इमाम मेहदी है। हदीस में ये है जनाब कि इमाम मेहदी को जो है आप पता चले तो आप जो घुटनों के बल भी चल के जाके उसकी बहस करें। तो भाई वहां पर इमाम मेहदी की अलामात भी तो बताई हैं ना, इमाम मेहदी की अलामात भी बताई हैं। तो क्या उन वो अलामात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी में पूरी होती हैं? यकीनन नहीं होती। हकीकत में ये सिर्फ ये एक बात बयान करके इनको पेश किया जाता है और उनका वो चेहरा दिखाया जाता है, क्योंकि मिर्जा कादियानी की यूँ समझ ले कि तस्वीर के दो रुख थे। आला दर्जे का मुनाफिक था, मैं सच्ची बात करने लगा हूँ। मुनाफिकत कोड कोड करके भरी हुई थी। एक तरफ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करता जा रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है वो मेरे सरदार खैरुल मुस्लिमीन हैं, मेरे आका हैं, मेरे फलां हैं, मेरे फलां हैं। यानी इन लोगों को जो उसका भयानक चेहरा है वो नहीं दिखाया जाता, भयानक चेहरे को छुपा लिया जाता है, दूसरा चेहरा दिखाया जाता है। तो इंशाल्लाह उसका भयानक चेहरा हम दिखाते रहेंगे ताकि लोग इस दज्जल से, इस धोखे से बाहर निकल सकें और बच सकें। जी भाई जी जज़ाकल्लाह लतीफ़ भाई। ये वही बात है ना कि झूठे ने अपने झूठ को छुपाने के लिए सच का सहारा लेना होता है। वही काम किया मिर्जा कादियानी ने, मतलब उसका लिटरेचर है, हर जगह पे उसने मतलब गाद नहीं मारा, सच का सहारा लिया अपने झूठ को छुपाने के लिए। ऐसे ही है, छुपाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज की जो हमारी स्ट्रीम है ये अपने इख्तिताम को पहुंचती है और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आइंदा जो इसका नेक्स्ट एपिसोड होगा अगले फ्राइडे, अगले जुमे रात 10 बजे होगा। और बैतुल्लाह लतीफ़ भाई इसका अगला जो करेंगे, अगला इसका एपिसोड करेंगे, इसे आगे लेकर बढ़ेंगे। आखिर में बस यही अर्ज करूँगा कि जो ख़त्म नबूवत का तरफदार नहीं है, जो ख़त्म नबूवत का तरफदार नहीं है, लारैब वो जन्नत का सजावार नहीं है। खामोश रहे सुन के जो इस्लाम की तौहीन, बेशर्म है, बुज़दिल है, वो खुददार नहीं है। वमा अलैना इल्ला